Water. The recording is started. Hi, Akshay. What's up? Okay, just give me a moment to open the open board. Let's wait for 5-7 minutes and then we will start. I hope my audio video is clear. Okay, chalo. It would be great if you all can open up your cameras. Maybe I can see how you guys look, where you are. Mhm. Yeah, so this is basically an intro session, or maybe you can say ki a session where we will discuss ki how we should plan the next three months. And we will not make a very long plan, but yeah, we will plan something for the next 2-3 months. Ki with a focus prep, what you should cover from the portal. Is there any need to cover anything else other than portal? How you should plan the mocks, right? And this session is mainly for the students who are new or who have joined this course in the last 1 month, right? ठीक है, चलो. Let's wait for 4-5 minutes. We will start at, let's say, 4-5. ठीक है. So we will start at 4-5, and this should video should be the first and last one for the orientation part, right? I don't, I mean, I don't like spending a lot of time in these things. What I believe is that you should start covering more and more concept. You should start doing more and more practice. And we will start this at 4-5 p.m. Okay. Today's date is 6th July.
Hi everyone. So can we start? Just confirm if everything is okay from your end and from my end. Yes. ठीक चलो है ना I can read your comments also. चलो cool. Would be better if you can just open your screen for the very first and last time. Right. Otherwise we will start like this only. No worries. चलो start करते हैं है ना. So देखो this session is mainly for the people who have joined last month or in the last 30 days, maybe in the last 7 days, 5 days, or in the last 30 days. आज 6 July है, so if you have joined after 6 June, then this session is for you, right? So mainly first assumption that I am taking कि अगर आपने join किया है course कभी भी, right, before 6 June or after 6 June and we are at this date at 6 July, so that I am assuming कि you all are targeting at least 90 plus, 99 plus in quants as well as DLR, right? So this is my basic assumption that you guys are targeting 99 plus in quants as well as DLR. ठीक है because अभी we have enough time, believe me, we have full month of July, August, September, अक्टूबर, नवंबर, राइट? अब इसके बाद कोई ज्वाइन कर रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ सितंबर, सो यू हैव टू ट्वीक योर प्लान्स अ लिटिल बिट, बट मोटा मोटा दिस शुड बी योर पाथ टू रीच द 99 परसेंटाइल, राइट? नो मैटर व्हेन डिड यू स्टार्ट और व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट. अगर आपने फेब्रवरी से स्टार्ट किया है या आपने अगस्त से स्टार्ट किया, सितंबर से स्टार्ट करोगे, द प्लान विल बी सेम फॉर एवरीवन, राइट? अब पहले हम पकड़ते हैं क्वांट्स को कि क्वांट्स में आपका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. ठीक है. अब देखो क्वांट्स में क्या है ना कि क्वांट्स में सिलेबस इज वास्ट, है ना. आपके पास मेन 5 टॉपिक्स हैं. ठीक है. इन विच आई फील कि यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद द अरिथमेटिक, देन यू शुड गो टू एल्जेब्रा. ठीक है. उसके बाद यू शुड कवर नंबर सिस्टम, देन यू शुड कवर मॉडर्न मैथ्स, एंड उसके बाद यू शुड गो फॉर जियोमेट्री. This should be the order whosoever is starting right now, right? This is the one thing. ठीक है कि आपने सबसे पहले अरिथमेटिक से स्टार्ट करना है, देन अलजेब्रा से, देन नंबर सिस्टम से, देन मॉडर्न मैथ से, देन ज्योमेट्री से. अब बात क्या है ना कि अभी अगर आप स्टार्ट करोगे सिलेबस को कवर करना, एंड इफ यू स्टार्ट अटेंडिंग द लाइव क्लास, ठीक है, तो वहां पे क्या है ना कि लाइव क्लास में फर्स्ट थिंग इज कि सिलेबस एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है. आप क्लास की स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, साथ साथ नोट्स नहीं बना सकते, क्लास को पॉज नहीं कर सकते, क्लास को रिवाइंड नहीं कर सकते, है ना, पीछे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते. तो लाइव क्लास में क्या है कि ऑलवेज यू हैव टू वेट फॉर द वीकेंड्स की कब क्लास होगी या जब भी क्लास शेड्यूल होगी, यू हैव टू वेट फॉर दैट. बट उससे पहले व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि आपका अरिथमेटिक एकदम कंप्लीट हो. क्योंकि अरिथमेटिक के आपके पास, अगर आप पोर्टल पे जाओगे, तो अरिथमेटिक के आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड की फॉर्मेट में, है ना. सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे अरिथमेटिक के. तो सबसे पहले आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो तो और भी बढ़िया है, दिन में दो दो क्लासेस भी देख सकते हो. बट अरिथमेटिक आपको कैसे कवर करना है, एंड इवन इफ यू आर वेरी गुड एट द अरिथमेटिक, स्टिल आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक बार क्लासेस को बिगनिंग से एंड तक सारी क्लासेस को गो थ्रू करो, बिकॉज इन एवरी क्लास यू विल लर्न ए लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, राइट? चाहे आपने अरिथमेटिक सब कुछ किया हुआ है, बट स्टिल यू विल रियलाइज कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैवंट नोन टिल दिस पॉइंट. और आज के बाद अगर आप चीजें स्टार्ट करोगे, क्लासेस स्टार्ट करोगे, तो आपके पास बहुत लर्निंग आपको मिलेगी. एंड अब आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई क्लास देखो, दैट शुड बी योर फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास, है ना. कि अगर आप लेक्चर टाइम एंड वर्क का लेक्चर देख रहे हो, तो बाद में उसको रिविजिट करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए. उसके लिए आपको क्लास देखते टाइम ही नोट्स बनाने हैं, वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द रिकॉर्डिंग्स. अब नोट्स में क्या बनाने हैं, देखो नोट्स में पहले तो जो भी फॉर्मूला है, मैं उसमें वैरायटी डिस्कस करता हूँ कि ये क्वेश्चन की वैरायटी है, ये क्वेश्चन के टाइप हैं, वो सारी वैरायटी टाइप आपको नोटबुक में नोट करनी है, सारे फॉर्मूलाज को नोट करना है. एंड इन केस यू फील कि देर आर सम गुड क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग, तो वो भी आपको नोट करना है. और अगर ये चीज नोट नहीं करोगे तब भी इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज आपको, अगर आप एक पोर्टल पे देखोगे, एक सेक्शन दिखता है क्लास पीडीएफ्स, है ना. तो जितना भी क्लास में मैं एनोटेशन करता हूँ, वो सारा मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ. सो इफ यू वांट टू रिवाइज सम टॉपिक, लेट्स से टाइम एंड वर्क, या जो भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है, यू कैन इजीली रिवाइज दोस टॉपिक्स थ्रू द क्लास पीडीएफ्स.
ताकि क्लास में मैंने जितनी भी चीजें लिखी है वो सारी आपको पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगी, और वो पीडीएफ को आप स्क्रॉल करते करते वो सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। बट द मेन प्रायोरिटी इज कि आपको अरिथमेटिक की सबसे पहले सारी क्लासेस आपको देखी होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिर जितनी भी हमारी असाइनमेंट्स हैं अरिथमेटिक की, वो आपकी एंड टू एंड तक कवर होनी चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू, आप अरिथमेटिक से स्टार्ट कर रहे हो या एल्जेब्रा से स्टार्ट कर रहे हो। एल्जेब्रा से स्टार्ट करोगे, यू विल गेट ए चांस टू अटेंड द लाइव क्लास, बट ऑन ए पर्सनल नोट आई डू नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द लाइव क्लास और द रिकॉर्डिंग्स। बल्कि मुझे अपने लेवल पे रिकॉर्डिंग ही ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसको आप 2x पे देख सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। और अभी हमारे पास क्वांट्स में दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट, और मस्ट टू हैव थिंग्स, राइट। ये मस्ट टू डू थिंग्स है, इसके अलावा हमें बहुत कुछ और कवर करना है। तो सबसे पहले ये बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लेट से बाय द एंड ऑफ सितंबर। यहां तक आपकी ये सारी बेसिक चीजें कंप्लीट नहीं होगी तो उसके आगे वाली जर्नी आपकी और टफ हो जाएगी। ठीक है। तो अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग एवरी क्लास दैट इज देयर ऑन द पोर्टल, फॉलोड बाय द असाइनमेंट। क्लास में मैं इतने क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं कि एक अगर आपने कोई टॉपिक की सारी क्लासेस देख ली, देन उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बट असाइनमेंट्स आर जस्ट टू फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन, कि हाँ कभी कभी आपको प्रैक्टिस में कमी है, आपको मन कर रहा है कि आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, देन असाइनमेंट्स आर देयर फॉर यू। और असाइनमेंट में भी आपको नए नए क्वेश्चंस, नई नई वैरायटी मिलेगी देखने को। दैट इज अनदर थिंग। उसके बाद जो हमारी चीज आती है, लेट से आप क्वेश्चंस देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपको डाउट्स आते हैं, राइट। तो आपने देख ही लिया होगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हम एक्टिव ही रहते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे कह लो या टेलीग्राम पे कह लो, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, यू हैव टू जस्ट टेक ए पिक्चर एंड सेंड दैट पिक्चर इन द डाउट ग्रुप। तो आपको 100% विद इन 1-2 आवर ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा कि इसको ऐसे सोल्व करना है। अगर नहीं भी मिलेगा तो आई विल गेट इन टच विद यू कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। वैसे तो क्लासेस में इतना स्लो चीजें चलती है कि आपको हर चीज समझ आ जाएगी, बट लेट से कि 1% केस है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देन वी विल हैव ए लाइव सेशन फॉर दैट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक और ऑन दैट क्वेश्चन, तो वो आपको सेपरेट वीडियो वहां पे मिल जाएगी। सो ऐसे करके आपको अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा जितनी जल्दी आपका क्लियर कवर हो सके, आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा खासकर उतनी जल्दी कवर करना है। अगर आपने ये दोनों टॉपिक कर लिए ना, देन ऑल्सो यू हैव अ वेरी गुड चांस टू स्कोर 99 इन द क्वांट सेक्शन, बिकॉज इन तीनों की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होती, है ना। मेन जो आपके 16 के अराउंड क्वेश्चंस हैं वो अरिथमेटिक अलजेब्रा से आते हैं, 16 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। और अगर आपने क्लास का कंटेंट, जितना मैंने क्लासेस में क्वेश्चंस करवाए हैं सारे अगर आपने कवर कर लिए, तो बिलीव मी यू आर वेरी क्लोज टू योर टारगेट। चाहे आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास 10th में मैथ्स थी, 12th में मैथ्स थी या नहीं थी, वो मैटर ही नहीं करेगा। मैटर बस ये करेगा कि आपको क्लास में जितना कंटेंट प्रोवाइड किया है, फर्स्ट आपको मेक श्योर करना है कि वो आप समझ पा रहे हो। सेकंड, मेक श्योर करना है कि आप चीजों को प्रैक्टिस कर पा रहे हो। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टल पे कैसे हमारी चीजें चलती है। राइट, दिस इज अवर पोर्टल। यहाँ से अगर आप कोई भी डाउट ग्रुप का पार्ट नहीं हो, सो यहाँ पे यू विल गेट लिंक्स फॉर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। मेक श्योर यू आर देयर इन ऑल द ग्रुप्स। वहां पे ही हम क्लासेस का स्केड्यूल और सब कुछ अनाउंस करते हैं। राइट, समीर यार, वेट फॉर ए मिनट। ठीक है। उसके बाद ऑल द अरिथमेटिक क्लासेस आर देयर, अराउंड 31 लेसन्स आर देयर। तो सारी अरिथमेटिक क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। उसके बाद वी डिड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आपको बाद में करना है, पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द अरिथमेटिक। अलजेब्रा में वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो वी हैव कवर्ड अराउंड 8 क्लासेस। और उसके बाद अलजेब्रा की हम लाइव क्लास डेली करते हैं। एंड नाउ इट्स अप टू यू, आपको पहले अलजेब्रा स्टार्ट करना है या अरिथमेटिक स्टार्ट करना है ना। थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहले अरिथमेटिक स्टार्ट करो, और अरिथमेटिक को जितना जल्दी आप खत्म कर पाओगे उतना जल्दी खत्म करो, है ना। उतनी जल्दी भी नहीं करना कि बस आप क्लासेस देखते जा रहे हो, लर्निंग नहीं आ रही, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वैसा नहीं करना, है ना। क्वालिटी लर्निंग करनी है कि क्लासेस थोड़ा सा फास्ट वे में देखना है, बट असाइनमेंट में आपको टाइम स्पेंड करना है। और यहाँ पे आपको हर टॉपिक की असाइनमेंट मिल जाएगी, है ना, इन द पीडीएफ फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे कुछ गोल्डन क्वेश्चंस है, है ना। इसकी वीडियोस आप लास्ट के 2-3 महीने में कवर करो। अभी कवर करना है अभी कर लो, बट लास्ट के 2-3 महीने में कवर करोगे तो इट विल मेक मोर सेंस। और यहाँ पे जितनी भी क्लास की पीपीटीज है ना, क्लास की पीडीएफ है, वो सारी आ जाएगी। तो कभी कभी आपको अगर पीपीटीज को गो थ्रू करना है, क्लास में जितना भी मैंने वर्क किया है, अगर उससे गो थ्रू करना है, तो नोट्स नहीं बनाने तो आप क्लास पीपीटीज से भी गो थ्रू कर सकते हो। दिस इज द अनदर ऑप्शन। सो दिस इज अबाउट योर QA99 पोर्टल। इसके अलावा अगर आप देखोगे, वहां पे हमारा एक सेक्शन है, वहां पे हमारा एक और सेक्शन है जो क्विज की फॉर्म में है।
दैट इज क्यूए मैक्सिमाइजर के नाम से, है ना, क्यूए मैक्सिमाइजर के नाम से। क्यूए मैक्सिमाइजर में ना आपको सारी क्विजेस मिल जाएगी, है ना, हर टॉपिक की टॉपिक वाइज क्विज। फॉर लेट से कि आपने टाइम एंड वर्क या टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस आपने टॉपिक कर लिया, असाइनमेंट भी कर ली, बट स्टिल आफ्टर 1 और 2 मंथ्स यू फील कि यार आपको वो टॉपिक को रिवाइज करना है ना, या टॉपिक को चेक करना है कि मैं, या टॉपिक को स्ट्रेंथन करना है, राइट। तो आप इस क्विजेस को गो थ्रू कर सकते हो, है ना, आप इस क्विजेस को गो थ्रू कर सकते हो क्यूए मैक्सिमाइजर में। ठीक है, थोड़ी सी हाई लेवल क्विज है, बट लर्निंग के पर्पज से काफी अच्छी है ना, और आपको टाइम प्रैक्टिस भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका पीवाई क्यूज की सारी क्विजेस टॉपिक वाइज अपलोडेड है ना, तो वहां पे भी देख सकते हो। बट इन दोनों से पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा ये कंटेंट प्रायोरिटी पे पूरा होना चाहिए, ये सारा कंटेंट हमारा प्रायोरिटी पे एकदम पूरा होना चाहिए। क्लियर है सभी को क्वांट्स का कैसे करना है? और क्वांट्स में अभी आपको, जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता, ना ही आपको कोई एडवाइस लेनी है, ना ही आपको कोई स्केड्यूल बनाना है। बस जब टाइम मिले तब आपको पढ़ाई करनी है। दिस इज योर सिंपल स्केड्यूल। किसी को 1 घंटा मिल रहा है, किसी को 5 घंटे मिल रहे हैं, किसी को 10 घंटे मिल रहे हैं। जितना भी टाइम आप ले पा रहे हो, सारा टाइम आप अपनी पढ़ाई को दो। आपके सामने पोर्टल है, आपके सामने नंबर ऑफ क्लासेस हैं। यू शुड डिसाइड कि आपको क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, क्या अटेंड करनी है, कब अटेंड करनी है। ठीक है। और मेरा मानना यही है कि अगर आपका सिलेबस अभी ज्यादा पड़ा है, अभी पेंडिंग सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन कवरिंग द सिलेबस। बिकॉज इसके बाद हम वी विल स्टार्ट विद द बूस्टर सेशन। वो आपको तभी समझ आएंगे, आप उसको लाइव तभी ज्वाइन कर पाओगे व्हेन यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिलेबस, अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। फिर वी विल डू रिवीजन सेशंस। ठीक है, अब रिवीजन सेशंस में लाइव ज्वाइन करने का तभी फायदा है जब आपने ये सब किया हुआ है, नहीं तो आप क्या रिवाइज करोगे। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद द मॉक एनालिसिस। अब मॉक एनालिसिस में भी या पीवाई क्यू एनालिसिस में भी आपका पार्ट लेने का तब फायदा है जब आपने ये सब किया हुआ है ना। जब यही सब किसी ने नहीं किया हुआ, तो फिर ये सब चीजों का फायदा ही नहीं रहेगा, है ना, ये सब चीजें आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि पहले रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर लो, ताकि आप बैच के बराबर आ जाओ, है ना। और दूसरा ये भी है, अब कई बच्चों ने सोचा होगा कि मुझे सब कुछ लाइव कवर करना है ना। अब देखो, लाइव कवर करने के लिए आप मुझे ये बताओ, हमारे पास टाइम कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर सब कुछ लाइव कवर करना है तो मैक्स टू मैक्स इन अ वीक वी कैन हैव 3 क्लासेस। 3 क्लासेस से ज्यादा क्वांट्स की क्लास नहीं लगा सकते, बिकॉज आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं। और 3 क्लासेस से ज्यादा लगाओगे तो कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है वो इम्पैक्ट होगी। अब उसमें थ्री थ्री क्लासेस में लगाओगे भी तो एक वीक में कितनी क्लास लग जाएगी? एक मंथ में 12 क्लासेस लग जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे 4 महीने क्लासेस चलाते हो तब भी 48 क्लासेस होगी, और 48 क्लासेस में अगर आप 99 स्कोर करना चाह रहे हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। या तो मुझे अपने एंड पे कुछ टॉपिक स्किप करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूला स्किप करने पड़ेंगे, दैट आई डू नॉट वांट। या स्टूडेंट को अपने एंड पे कुछ ना कुछ स्किप करना पड़ेगा। और इसके बाद आप यहीं तक सिलेबस ही कवर करते रह जाओगे, तो आप मॉक कब दोगे, आप रिवीजन कब करोगे, आप बूस्टर सेशन कब अटेंड करोगे, आप पीवाई क्यू प्रैक्टिस कब करोगे, है ना। दीज आर अवर मेन थिंग्स, एंड सिलेबस कंप्लीशन इज अवर बेसिक थिंग। ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। सिलेबस कंप्लीशन इज अ वेरी बेसिक थिंग, है ना। और सिलेबस कंप्लीशन में भी हम बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे हैं ताकि आपको बार बार और प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े। वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, यू आर रेडी टू अपीयर फॉर मॉक्स और अपीयर फॉर एक्चुअल एग्जाम। आप वो लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद ही ये चीजें आपको सेंस बनाएगी, है ना। और सिलेबस कंप्लीशन अगर लाइव करते रहोगे तो बहुत लंबा चलेगा, है ना। तो इसीलिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जिनका सिलेबस पेंडिंग है, यू मस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, ताकि आप रिकॉर्डिंग्स को एक दिन में 2 रिकॉर्डिंग, 3 रिकॉर्डिंग, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पास टाइम है, एंड रिकॉर्डिंग की स्पीड बढ़ा सकते हो 1.5x 2x, जितनी स्पीड बढ़ानी है उस पर बढ़ा के फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर डन विद द बेसिक सिलेबस। ठीक है। सो दिस इज आवर इंटायर प्लान फॉर द क्वांट्स। इतना समझ आया? किसी को डाउट क्वांट्स में? ठीक है। अब क्वांट्स में बार बार ये नहीं करना मेरा क्वांट्स वीक है। देखो, अगर आपका क्वांट्स वीक है, क्या सॉल्यूशन है? आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ये आपके सामने इंटायर प्लान है, ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। क्वांट्स में नंबर नहीं आ रहे, क्वांट से डर लग रहा है, क्या इलाज है? सिलेबस कंप्लीट करो,
मेन थिंग्स जो आपकी आएगी, मॉक एनालिसिस, रिवीजन, बूस्टर सेशंस, पीवाईक्यूज, उसमें पार्ट लो, तब आपका स्ट्रोंग होगा। क्वांट्स में आपको 99 लेके आने हैं, सेम प्लान है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज का आंसर एक ही है, दैट इज कंप्लीट योर सिलेबस एंड देन अटेंड द हाई लेवल सेशंस। यही यही आपका एक जो सही मेथड है वो है ना। लास्ट में जाके क्रैश कोर्स करोगे, अब जो बच्चा क्रैश कोर्स करेगा और जो बच्चा अरिथमेटिक की 30 क्लासेस लगाएगा, तो क्या उनमें फर्क नहीं होगा? क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क नहीं होगा? राइट? या तो आप ये सोच लो कि आपको उतना करना ही नहीं है ना, तो आप अपने एंड पे क्लासेस को मिस कर दो, दैट इज द वन थिंग, है ना। या अगर आपको ये लग रहा है कि आपको 99 ही लाना है, फिर आपके लिए पूरा प्लान ही है। अगर आपको है कि आपको 90 ही लेना है, तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिस कर दो, है ना, जो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी, बट आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा, जो मैं सजेस्ट नहीं करता, है ना। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, 5 महीने इनफ है। फोकस रह के प्रेप करोगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करोगे, दिन में 2-2 3-3 घंटे भी दे दोगे ना, तब भी आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। एंड बिलीव मी, क्वांट इज वन ऑफ द एरियाज, है ना, क्वांट इज वन ऑफ द एरियाज जहां पे आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा कहीं आपको फोकस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वीएआरसी में डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, वीएआरसी कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस पे चलती है। और सेम डीएलआर, डीएलआर में बेसिक आइडिया होने के बाद जो आपका मैक्स टू मैक्स 1 मंथ लेगा, उसके बाद आपकी चीजें प्रैक्टिस पे ही चलेगी। और डीएलआर में बहुत लोगों ने अभी तक तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें कर ली होगी, ऐसा तो नहीं है कि डीएलआर कोई बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट कर रहा है ना। बिल्कुल कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा है जिसने कुछ भी नहीं किया डीएलआर में, उसके लिए भी देयर इज ए प्लान। बट हाँ, फिर उसको थोड़े से नंबर ऑफ आवर्स, है ना, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये सब उसको करना पड़ेगा। मॉक करना शुरू कर दे फिर। अंडरस्टूड? मॉक में ना भाई। समझ आया सभी को? ठीक है, अब करते हैं डीएलआर की बात, है ना। तो डीएलआर में भी आपके पास सेम पोर्टल है। अब देखो, डीएलआर का क्वांट से थोड़ा सा प्लान अलग है ना। जैसे डीएलआर में क्या है ना, कि इफ वी हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग बिल्कुल फ्रेश, है ना, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया डीएलआर में, तो आपका प्लान क्या होना चाहिए कि फुल जुलाई एंड मिड अगस्त, है ना, फुल जुलाई एंड मिड अगस्त तक आपको क्या करना है? सिर्फ यहां तक आपको क्या करना है? आपको टॉपिक वाइज प्रेप करनी है, टॉपिक वाइज प्रेप करनी है, समझे? आपको जुलाई से लेके मिड अगस्त तक क्या करना है? सिर्फ टॉपिक वाइज प्रेप, नथिंग एल्स, है ना। टॉपिक वाइज प्रेप आपको करनी है, ताकि सारे टॉपिक्स आपके सॉर्टेड हो जाए। और टॉपिक्स में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लास में देखोगे ना, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। अब टॉपिक का अगर मैं ऑर्डर बताऊं, तो यू में स्टार्ट विद अरेंजमेंट, देन सेट थ्योरी, विच इज अ लिटल डिफिकल्ट, है ना। बट प्रायोरिटी पे इसको मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि इस पे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओ, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के शायद चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू कवर गेम्स एंड टूर्नामेंट, है ना। ये दो चीजें आपका टाइम लेंगी, है ना, ये दो चीजें आपका अच्छा खासा टाइम लेंगी। बट वहां पे डिस्टर्ब फील नहीं करना कि टाइम जा रहा है या ये जा रहा है। सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स थोड़े से हैवी टॉपिक्स हैं, टाइम लेंगे, तो टाइम देना ही पड़ेगा। अरेंजमेंट आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, है ना। फिर यू हैव टू कंप्लीट बाइनरी लॉजिक, रूट्स एंड नेटवर्क्स, एंड डीएल, है ना। ये इतने टॉपिक्स तो आपको करने चाहिए, देर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो, बट फर्स्ट आई वांट कि ये सारे टॉपिक्स भी करो, है ना। और एक सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन, है ना, सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं अपने एंड से माइक बंद कर देता हूँ, मुझे एक्चुअली डिस्टर्बेंस हो नहीं रही थी। चलो, अब ठीक है। चलो ठीक है ना। अब देखो, इतने टॉपिक्स करने हैं, है ना। अब अरेंजमेंट का पहले आप स्टार्ट करोगे, तो अरेंजमेंट में देर आर 1-2 क्लासेस, और उसके बाद आपको क्विज में सेट है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, कि आपको क्विज में ही सेट को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज एवरी सेट इज ऑफ कैट लेवल। ठीक है, कोई भी बेसिक सेट, फालतू सेट हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यू ऑल कैन सोल्व बेसिक सेट्स, है ना। बेसिक सेट में बार बार आपको देता रहूंगा, आप टाइम इन्वेस्ट करोगे,
उसका मॉक्स में या रियल एग्जाम में इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो हमें स्टार्टिंग से अपने आप को कैट लेवल प्रेप में स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जितने भी इसमें सेट्स हैं, देखो इसमें सेट्स अराउंड 20 सेट्स हैं। तो इट्स अप टू यू, आपको 20 करने हैं या आपको कुछ लेट से 10 सेट के बाद आपको फील हो रहा है कि ये टॉपिक मेरे लिए ठीक है, तो अब सेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको 20 सेट्स कर लो, मोर देन इनफ। फिर सेट थ्योरी के अराउंड 25 to 30 सेट्स है, ठीक है, क्विज मोड में। इसमें आपको लग रहा है, इसमें आई सजेस्ट कि सारे ही सेट करो, बिकॉज हर हर एक सेट नया लर्निंग देता है ना। बट अप टू यू कि आपको कितने सेट्स करने हैं। बट इतने जरूर करना कि आपका अंदर से आपको फील होना चाहिए कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर है। सेम गोज विद द गेम्स एंड टूर्नामेंट, है ना। इसके थोड़े से मीडियम से सेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा सेट करने की जरूरत नहीं है। रूट्स एंड नेटवर्क के 10-12 सेट मैं अपलोड करूंगा, वो कर लेना, बिकॉज पास्ट में अब 2-3 साल से रूट्स एंड नेटवर्क से कुछ कुछ आ रहा है। डीआई के सेट बहुत नॉर्मल होते हैं, इग्नोर भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, है ना। डीआई के सेट्स में इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन क्या है, अपलोडेड 10-12 सेट्स, तो वो कर लेना, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आता रहता है। अब देखो ये सेट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा, है ना, आपको प्रेशर भी फील होगा, बिकॉज हर सेट के लिए हार्डली 14-16 मिनट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सेट। और आपका टाइमर चलेगा, क्विज मोड में सेट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इट मे हैपन कि पहले 1 महीने में आप एक भी सेट सोल्व नहीं कर रहे हो, आपका टाइम खत्म हो जा रहा है। बट दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज देन यू विल हैव ए रियलिटी चेक कि वेयर यू स्टैंड। इजी सेट्स का विदाउट टाइमर करना नॉट ए बिग डील, बहुत लोग कर लेंगे। कैट लेवल सेट्स को टाइम के साथ करना मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द मॉक्स और फॉर द सिचुएशन दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे सेट क्रैक नहीं हो रहा, लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा, है ना, तो वहां पे डीमोटिवेट फील नहीं करना, बिकॉज डीएलआर में यही होता है, बच्चा डीमोटिवेट फील करने लग जाता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि वीडियो सॉल्यूशन में मैं सेट्स को कैसे सोल्व कर रहा हूं, मैं सेट्स को कैसे अप्रोच कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज अ वन थिंग, ये आपको फोकस करना है। सेकंड, आपको ये देखना है कि मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, मेरे से नहीं हुआ, मैंने 14 मिनट्स 15 मिनट्स 17 मिनट्स दिए, नहीं हुआ, मुझे प्रेशर फील हुआ, मैंने सॉल्यूशन देखा, मेरे इसमें टाइम चला गया, क्या मेरी क्वालिटी लर्निंग हो रही है, क्या मैं यहां से नई चीज सीख रहा हूं या सीख रही हूँ। इफ द आंसर इज यस, देन यू शुड कंटिन्यू। और आपका आंसर हमेशा यस ही होगा, बिकॉज सेट्स ऐसे सिलेक्ट किए हुए हैं पास्ट ईयर मॉक से कि आपको हर सेट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आपको हर सेट से बस ये देखना है कि आप नया कुछ सीख रहे हो। और डीएलआर में नया सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मूला सीख रहे हो, देयर इज नो फॉर्मूला, प्योर लॉजिक रहता है। बस आपको ये देखना है कि क्या आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा है, क्या आपका माइंड ट्रेन हो रहा है इस चीज पे कि आपको आगे से अगर ये सेट आया तो आपको सेट ऐसे अप्रोच करना है। बस हमें वही ब्रेन को ट्रेन करना है। क्या आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो धीरे धीरे, क्या आप देख पा रहे हो कि मैं सेट्स को कैसे अप्रोच करता हूँ। ठीक है, तो पहले 1.5 मंथ्स में बस आपको यही फोकस करना है कि आप ये सारे टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, है ना। मे बी एंड ऑफ अगस्त तक भी करोगे तब भी ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो अगेन जैसे मैंने क्वांट्स में बात करी कि देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज बेसिक थिंग, सेकंड इज मेन थिंग। बेसिक थिंग इज ऑलवेज सिलेबस कंप्लीशन। बहुत बच्चे सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया, है ना, हमें तो लाइव क्लास से अटेंड करके सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं प्रिपेयर हो गया मॉक के लिए या एग्जाम के लिए, नहीं। दैट इज द प्योर बेसिक थिंग, है ना। बस सिलेबस कंप्लीशन इज द बेसिक थिंग, उसके बाद सही खेल चालू होगा आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर में। वंस यू आर डन विद दिस, यू शुड स्टार्ट विद द मिक्स्ड सेट। पोर्टल पे देख सकते हो मिक्स सेट प्रोवाइडेड होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, पावर अप सेट्स, मिक्स सेट्स, ऐसा कुछ होगा, है ना। सो एज ऑफ नाउ यू विल बी एबल टू सी दिस 14 नंबर पे पावर अप मिक्स सेट्स। ठीक है, तो पावर अप मिक्स सेट्स में क्या है ना कि हमारे अच्छी अच्छी वैरायटी के मिक्स टॉपिक से हमने सेट डाले हैं कैट लेवल के। सो यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 2-3 सेट्स पर डे फ्रॉम दिस टॉपिक, पावर अप मिक्स सेट्स। यहां से भी हमारा, अब यहां से जो आपकी जर्नी चलेगी उसमें आपके लिए मार्क्स प्लस लर्निंग दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, मार्क्स प्लस लर्निंग दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जब आप पावर अप मिक्स सेट स्टार्ट करोगे, एंड बिलीव मी दीज आर द गोल्ड माइन, है ना, एकदम इतने क्यूरेटेड सेट है, इतने अच्छी क्वालिटी के सेट है कि आप कभी भी टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको लर्निंग ही मिलेगी। और डीएलआर में आपके साथ यही जाएगा, है ना। अब डीएलआर में थोड़ा सा बता देता हूं, ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसके साथ आपको सेक्शनल्स
प्लस मॉक्स, बस डीएलआर में यही आपका है ना। अब आपका ये देख लो, यहाँ पे बेसिक चीजें आपकी पहले खत्म हो जाएगी, है ना। फिर सेक्शनल्स, मॉक्स, मार्क्स प्लस लर्निंग, और जो हम बूस्टर सेशन हमने स्टार्ट किया है, कल एक बूस्टर सेशन था, आपने देखा होगा। तो बूस्टर सेशन आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आई विल हाईली सजेस्ट कि जब भी बूस्टर सेशन होगा डीएलआर का, एटलीस्ट डीएलआर का बूस्टर सेशन आपको सबको अटेंड करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर। आपने सिलेबस स्टार्ट किया है, एंड किया है, जहां भी आप हो, आपको बूस्टर सेशन लाइव अटेंड करना ही करना है डीएलआर। अंडरस्टूड? ठीक है। अब डीएलआर में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पेपर में होता क्या है ना, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्वांट्स में क्या है ना कि बहुत सारा ओवरलैप रहता है, पास्ट ईयर से क्वेश्चन आते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, बट डीएलआर में 101% देयर विल बी न्यू सेट्स। तो डीएलआर में जो आप सोचते हो 500 सेट का टारगेट, 1000 सेट का टारगेट, 1500 सेट का टारगेट, वो आपका हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज 101% देयर विल बी न्यू सेट, है ना। इसमें आपको जो हेल्प करेगा वो होगा ब्रेन ट्रेन, कि आपने अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन किया है। और वो आप ट्रेन कैसे करोगे? क्विज से, है ना। कि आप एक सेट देखते हो, उसको लॉजिक कहां से पकड़ते हो, सोल्व करने के लिए उसको स्ट्रक्चर कहां से देते हो, एंड टाइम मैनेज कैसे करते हो, एंड सीक्वेंस आपका क्या है। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपका सेट सोल्व होगा। अगर सेम पेपर एक बच्चा लेट से 2341 के चक्कर में अटेम्प्ट कर रहा है, और एक बच्चा कर रहा है 3241, अगर एक बच्चा इस अटेम्प्ट से जा रहा है और एक बच्चा इस सीक्वेंस से जा रहा है विद द सेम नॉलेज, इन दोनों के स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सेट सिलेक्शन, सेट का सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है डीएलआर में, जो कि आप ऑब्जर्व करोगे जब आप सेक्शनल और मॉक्स दोगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कब आपको सेट पकड़ना है, कब आपको सेट छोड़ना है। एंड डीएलआर में आपका ही 101% रोल रहता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम देने जाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा सेट सिलेक्ट करना है, कौन सा सेट छोड़ना है। और लेट से इफ यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग सेट, तो यू शुड नो कि यू विल बी लीविंग दैट सेट विद इन फर्स्ट 7 to 8 मिनट्स। उससे ज्यादा सेट पकड़े रखोगे तो इट्स लाइक अ फंगस, वो आपका पूरा सेक्शनल खराब करता जाएगा, है ना। एंड यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि अगर 5 सेट है, मैं एक सेट में अटक गया, 2 सेट में अटक गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आपने पहले 2 सेट लिए, आप दोनों सेट में अटक गए। उसके बाद माइंडसेट क्या होना चाहिए कि जो मेरे 3 सेट बचे हैं, ये दोनों मेरे वो सेट थे जिसमें मैं अटक सकता था, और इसमें मैं ऑलरेडी अटक चुका। अब 3 सेट ये रह गए जिसमें मैं अटकूंगा नहीं। 5 सेट में देखो, कैट में कभी भी ऑब्जर्व करोगे ना प्रीवियस ईयर पैटर्न, तो ऐसा एग्जाम कभी नहीं आया जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जिसमें सेट सोल्व ही ना हो। एक आधा सेट आ जाएगा जिसमें आप अटक सकते हो। तो बेटर है कि आप फर्स्ट 5-10 मिनट्स में वो सेट में अटक गए, तो अभी आप रिलैक्स हो कि आपके जो सेट्स बचे हैं, जो टाइम बचा है, उसमें आप नहीं अटकोगे। सो दैट इज हाउ यू शुड कंट्रोल द इंटायर एटमोस्फेयर इन द डीएलआर सेक्शन, बिकॉज डीएलआर में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, स्पेशली जब आपका सेट क्रैक नहीं होता, स्पेशली जब आपका टाइम 20 मिनट रह जाए, है ना। 20 मिनट्स इज टू मच, बट वो 20 मिनट्स में अगर कुछ भी ना हो ना पहले 20 मिनट्स में, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे क्या करते हैं कि नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। तो रादर देन गोइंग फॉर द क्वांटिटी ऑफ सेट्स, वी विल गो विद द क्वालिटी ट्रेनिंग, जहां पे सिर्फ हमें लॉजिक नहीं पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। हम प्रेशर नहीं लेंगे एग्जाम में। एंड दिस इज इजियर सेड देन डन। मैं अभी बोल रहा हूं, इतना इजी नहीं है, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, है ना, तब आपको पता लगेगा कि आपका वीकनेस क्या है। एंड इसके लिए वी विल हैव मल्टीपल चिट चैट सेशन, जहां पे बस हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने कोई सेक्शनल अपीयर किया, तो वहां पे आपने क्या गलती करी और आगे से उसको कैसे इंप्रूव करना है। समझ आया? डीएलआर में डेली आप देखोगे, डेली ग्रुप्स में टारगेट आते हैं, है ना, अनाउंसमेंट ग्रुप में कि आज ये सेट रिलीज हुआ, ये सेट रिलीज हुआ, है ना। अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने टॉपिक्स नहीं कवर किए, तो फर्स्ट यू शुड गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, और उसके बाद आपके पास पावर अप मिक्स सेट्स हैं, वहां पे आपको जाना है। और मीनवाइल जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, सेक्शनल्स ले रखे हैं, सेक्शनल्स आर देयर इन द डीएलआर कोर्स ऑल्सो, बट अगर सेपरेटली आपने कहीं से सेक्शनल्स या टेस्ट सीरीज ले रखी है,
देन गो फॉर दैट ऑल्सो, है ना। डीएलआर का मेनली यही है, जितनी जल्दी आप क्विज, जितनी जल्दी आप पावर अप सेट, जितनी जल्दी आप सेक्शनल, जितनी जल्दी आप मॉक स्टार्ट कर दोगे, उतनी जल्दी क्या होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, उतनी जल्दी आपको रियलिटी चेक मिलेगा। रियलिटी चेक मिलने के बाद आप रोओगे, है ना। मेरा अगर फर्स्ट ओरिएंटेशन देखोगे तो वहां पे मैंने लिखा था कि एवरीवन क्राइज इन द डीएलआर सेक्शन, चाहे आईआईटी का बंदा हो, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे मैं भी हूं, चाहे डीएलआर का टॉपर भी हो, कहीं ना कहीं उसने मॉक्स में प्रॉब्लम फेस की होती है डीएलआर में। बस डीएलआर में आपको जब रियलिटी चेक मिला है, तब आपको खुद से एक नया प्लान बनाना है कि अब मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। मेरा ये, यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, ये टॉपिक में लैग कर रहा हूँ, ये करेक्टरिस्टिक्स में लैग कर रहा हूँ, कि मैं नर्वस हो जाता हूँ, मुझे नर्वस नहीं होना, है ना। मैं सेट को छोड़ नहीं पाता, पकड़ लेता हूँ, वो मुझे चेंज करना है। मैं सेट सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहा, वो मुझे चेंज करना है। और वो सब चीजें हम जब हम मॉक्स को एनालाइज करेंगे ना, तो तब भी देखेंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डीएलआर का थोड़ा सा टॉपिक वाइज सिलेबस आप जल्दी कर लो, ताकि आप मॉक एनालिसिस में पार्ट ले सको, है ना। 10 अगर 5-10 मॉक भी एनालाइज करें तो आपको बहुत ही अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा। और वो डायरेक्शन में आप सभी को बहुत जल्दी देना चाहता हूं, है ना, उसके लिए हम लेट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर है सभी को? ठीक है। कोई डाउट क्वांट से डीएलआर में कि कैसे मूव करना है ना। और थोड़ा सा ग्रुप्स पे एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो, है ना, एक दूसरे के डाउट सोल्व करो, खुद के डाउट्स भेजो, वहां से बहुत लर्निंग आएगी। स्पेशली इतनी अच्छी लर्निंग वहीं से आती है, क्योंकि वहां पे जो भी टॉपिक्स आएंगे ना, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वो मेनली वही होते हैं जिसपे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। और अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप पे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, दैट मीन्स दैट्स ए गुड क्वेश्चन, है ना। वहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, दैट मीन्स दैट्स ए गुड क्वालिटी क्वेश्चन, तो आप उसको सोल्व करोगे या उसका सोल्यूशन देखोगे ना, तब आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। ठीक है। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर योर डाउट्स, जस्ट पुट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स, और मे बी यू कैन अनम्यूट, है ना। बट लेट्स गो वन बाय वन, राइट। इन क्वांट, yes, past year questions are necessary, but we will do that in the last 1-2 months। वो मैं बता दूंगा कि आपको कब करने हैं, अभी मत करो। अभी पहले पोर्टल पे ही ध्यान दो, है ना। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं हमें 2017 से 2024 तक सारे, बट वो आपको कब करने हैं उसका टाइमलाइन मैं बता दूंगा। ठीक है। आई विल ट्राई कि 21, 22, 23, 24 लास्ट के 3 इयर्स के मैं आपको लाइव क्लास में सोल्व करके दिखा दूं, है ना। बट इट्स बेटर कि आप बाकियों के एज अ सेक्शनल उसको अटेम्प्ट करो। सर विल यू कवर द इंटायर अलजेब्रा एट द एंड ऑफ जुलाई? ट्राई कर सकते हैं, है ना, ट्राई कर सकते हैं, मतलब हो सकता है। अभी अलजेब्रा में बहुत ज्यादा हमारा रहा नहीं है, अलजेब्रा के बाद वी विल स्टार्ट विद द मॉडर्न मैथ्स, है ना। तो अलजेब्रा ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आई थिंक वो ही मेन टॉपिक्स हैं, उसकी 2-2 3-3 क्लास और लगेगी। बट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलना चाहता, लेट्स टारगेट थी, चलो एंड ऑफ जुलाई में कर लेंगे, है ना, अच्छा अमाउंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, क्वांट मॉक्स तब स्टार्ट करो जब एटलीस्ट क्वांट्स का आपका 50-70% आपने कर लिया हो खुद से, है ना। उसके पहले मॉक दोगे तो आपको कुछ आता नहीं होगा, तो फिर क्या एनालाइज करोगे, है ना, फिर एनालाइज क्या करोगे। यू सजेस्टेड अस टू बाय आईएमएस एंड सीएल टेस्ट सीरीज, यस। कैन यू प्लीज टेल हाउ टू यूज दैट अलोंग विद दिस कोर्स? सीएल और आईएमएस की तो टेस्ट सीरीज है ना, उसको तो देते रहो, राइट। इफ यू हैव जस्ट कवर द अरिथमेटिक एंड सम पोर्शन ऑफ अलजेब्रा, तो उसको देते रहो ना। और एज आई सजेस्टेड उसको एंड ऑफ जुलाई में भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। Sir, in quants, if we were not able to solve problem, should I see solution after trying for about 10-15 or give? नहीं नहीं, quants में तो solution देखो ना। You don't have to wait for 10-20-15 minutes। 2-3 मिनट, 4 मिनट देख लो, उसके बाद नहीं सोल्व कर पा रहे तो then go for the solution। नहीं नहीं, you have to first go through the assignment। क्यूए असाइनमेंट करो, डायरेक्टली क्यूए मैक्सिमाइजर मत करो, मतलब दैट इज नॉट व्हाट आई सजेस्ट, बट अगर आपको करना है तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो, देर इज नथिंग रॉन्ग। बना देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा।
क्वांट्स का सिलेबस में अगर कोई पुराने बच्चे हैं तो ठीक है, हम टारगेट कर सकते हैं कि क्वांट्स का सिलेबस थोड़ा सा जल्दी रैप अप कर दे, है ना, ताकि उसके बाद हम एक बूस्टर सेशन टाइप वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। क्यूएस सिलेबस फिनिश बताया तो था। क्यूएस सिलेबस का आप पाए नहीं क्या पहले? बहुत डिटेल में बताया था, एक बार दोबारा चेक करना। मिड मिड सितंबर तक टारगेट कर सकते हो, अगर बेटर है मिड सितंबर तक कर सकते हो तो। What if I am to solve question? What if I am unable to solve quants questions if even after going through an assignment? How to do? This should not happen. Let's not discuss what if moments. But I don't think it would happen. अगर हो रहा है तो maybe you have to see कि कहाँ पे गलती हो रही है ना? Then you have to see कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है। अभी सबको आइडिया लग गया ना कि क्या करना है क्वांट्स और डीएलआर। राइट। आई होप नाउ यू गाइज आर क्लियर कि कैसे आगे अपनी जर्नी को चलाना है, टाइम कितना बचा है आपके पास, कितना नहीं बचा। और मिड एंड ऑफ जुलाई मिड ऑफ अगस्त से आपको मॉक्स भी स्टार्ट करने हैं, तो उसके पहले ऑब्वियसली सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, है ना। वो काम मत करो कि लास्ट में फिर क्रैश कोर्स करना पड़े या बहुत बहुत तेज चीजें आपको करनी पड़े, है ना, वैसा मत करो। अंडरस्टूड। चलो, है ना। ब्रो कैन यू प्लीज टेल हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल्सो? अब फॉर ऑल्सो क्या होता है? आई एम एज्यूमिंग यू आर ट्राइंग टू से कैन यू प्लीज टेल हाउ टू प्रिपेयर फॉर वीआरसी ऑल्सो, राइट? वीआरसी के लिए यार ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड मल्टीपल वीडियोस, है ना। मतलब आई डोंट वांट टू गिव आउट सेम ज्ञान अगेन एंड अगेन। आप यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पे यू कैन वॉच एनी टीचर्स वीडियो। मेरा भी देखोगे तो मेरा भी मैं शेयर कर दूंगा दोबारा, है ना, अगर आपको चाहिए। बट वीआरसी के लिए सेम ही थिंग है, आई थिंक मैं रोज कहीं ना कहीं बोलता ही हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट आई विल शेयर अ डिटेल्ड वीडियो ऑल्सो, है ना। वहां पे मैंने, या यू कैन जस्ट गो थ्रू माई यूट्यूब चैनल, मैंने अपलोड की होगी लास्ट ईयर। ठीक है। चलो। ओके। गुड बाय। लेट्स मीट टुडे इन क्वांट्स क्लास।